Hello Arshita, I am Sunil Patil, Director of Spectrum Academy. A very warm welcome in the platform of Spectrum Academy. Thank you. First of all, big congratulations for your achievement, grand achievement in UPSC Civil Services Exam 2024 as All India rank second. This exam is considered to be the toughest exam in India, and now you have become the role model of thousands of aspirants. How do you feel after this result? So first of all, it was quite unbelievable that I secured All India Rank 2. But now, since it has been more than 2 months, so now the feeling has started to sink in. And I feel grateful to my family, God, that I got this success. And secondly, I feel excited for what is ahead, because now we are going to join as civil servants, and we are going to start our training in Labasna. And Labasna was always a dream place for me and millions of aspirants. So I'm excited and nervous both at the same time, sir. After securing All India rank 2, you became the sensation in social media. So how do you feel about it? So again, that was quite unexpected, because I did not believe that I'll get so many followers or people will look towards me as a role model. But I feel that it is kind of a responsibility than the popularity, because now these many people look towards me and they expect me to guide them. So it is kind of a responsibility, and I'm really grateful about that. मैंने आपका एक इंटरव्यू सुना, वहाँ पे आपने मेंशन किया था आप ऑल इंडिया रैंक सेकंड चाहती है, नॉट फर्स्ट. व्हाई इट इज सो? सर एक्चुअली वो एक जोक था. मतलब वैसे मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं था कि मैं ये बात बोलूँगी और वो सच हो जाएगी. बट मी एंड माई फ्रेंड वी यूज टू प्रिपेयर टुगेदर, एंड वी वर जस्ट जोकिंग अराउंड बिफोर आवर रिजल्ट्स वर गोइंग टू कम. So we were discussing. So my friend told me that I'll secure All India Rank 1, and then I added that I'll secure All India Rank 2. And jokingly I said that Rank 2 वाले ज़्यादा फेमस होते हैं, ऐसा इस तरह से तब हमने मजाक मस्ती में बोली थी ये चीज़. बट तब नहीं पता था कि ये एक्चुअल में एक हकीकत बनने वाली है. सो इट वॉज जस्ट अ फनी मोमेंट between me and my friend, which turned into a reality. How you decided civil services as a career and what motivated you for this? So सिविल सर्विसेज एज अ करियर मैंने पहले अपने स्टार्टिंग फेजेस में डिसाइड नहीं किया था व्हेन आई वाज परस्यूइंग CA. बट उसके बाद once I completed it, once I became a chartered accountant, at that time I was exploring now what next to do. So at that time it was my father who was my primary motivation. कि उन्होंने मुझे कहा ये चीज़ कि he knows me, so he has seen me. तो he told me that आपका जैसा नेचर है, the things you want to do, that you can do well if you are in civil services. No doubt any other profession, be it CA or be it a doctor or any other profession, उससे भी आप उतना contribution कर सकते हो. But once you are in the mainstream, you are in the system, you can actually bring systemic change. So that is what motivated me, and my primary inspiration was my father. How was your entire journey of UPSC? Did you enjoy it? I enjoyed it, sir, but there were again moments of ups and downs, because हर एस्पिरेंट के साथ ये चीज़ होती है. हम शुरू में बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ ये जर्नी स्टार्ट करते हैं, बट जब धीरे धीरे हम इसमें प्रिपरेशन करते हैं, जब इतना सारा सिलेबस होता है, इतनी सारी बुक्स होती है, हमें सब पढ़नी पड़ती है, फिर रिटेन नहीं रहती है चीज़ें. हमारे आसपास जो एक बहुत ही कट थ्रोट कॉम्पिटिशन बोलूँ, वो कॉम्पिटिशन होता है, बिकॉज इट इज़ अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम. सो वो इनिशियल एक्साइटमेंट के बाद फिर वो जो प्रेशर वाला फेस स्टार्ट होता है, तब वो आप डाउन्स फील करना स्टार्ट करते हो. उसके बाद धीरे धीरे जब आप ये जर्नी में आगे बढ़ते हो, तब आपको चीज़ें समझ आती है कि कौन सी चीज़ें आपको करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है. आप अपनी गलतियों से सीखते हो. फिर आपको समझ में आता है कि यस, दिस इज़ द की टू क्रैक UPSC. तो मेरे साथ भी यही हुआ. इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड आफ्टर कंप्लीटिंग CA, तो तब जब फर्स्ट अटैम्प्ट मैंने दिया मेरा 2022 में, उसके पहले मैंने करीबन 8-9 महीने लेक्चर्स देखे थे, मेरे स्टैंडर्ड बुक्स पढ़े थे, और उसके बाद मैं अपना एग्ज़ाम देने चली गई. तो तब मुझे इतना आइडिया नहीं था कि ये तो सिर्फ बेस है, इसके अलावा आपको बहुत कुछ करना पड़ता है टू क्रैक द एग्ज़ाम. तो तब कहीं ना कहीं मेरी लैक ऑफ प्रिपरेशन थी. उसके बाद सेकेंड अटैम्प्ट में चीज़ें समझ आई थोड़ी सी, तो उसमें वापस वर्क किया, बट अगेन कहीं ना कहीं कमी रह गई. CSAT वॉज अ मेजर हर्डल फॉर मी इन माई सेकेंड अटैम्प्ट. फिर वो गलतियाँ सुधारी, फिर थर्ड अटैम्प्ट में वापस मेहनत की. तो ये जर्नी में बहुत कुछ मैंने सीखा. पर्सनैलिटी वाइज भी मेरा डेवलपमेंट हुआ, एंड नॉलेज वाइज भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली. सो दैट इज़ वॉट मेड माई जर्नी इन्जॉयबल.
बट येस देयर वर मैनी डाउन्स ऑल्सो व्हेन यू फील डिप्रेस्ड, यू फील डीमोटिवेटेड कि शायद ये जर्नी आपके लिए नहीं है, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी रिवॉल्विंग अराउंड UPSC. तो तब आपको ऐसा लगता है व्हेन यू सी योर फ्रेंड्स गोइंग टुगेदर एंड गोइंग फॉरवर्ड इन CA, बिकॉज मैं देख रही थी एंड आई वॉज फीलिंग स्टैगनेंट because I could not clear my first attempt, second attempt. So it felt like a burden at some point. But then it was because of my family, my father's motivation, I kept going forward and I did not give up, and that is how I am here. आपने BCom कंप्लीट किया, उसके बाद आपने CA का भी अचीवमेंट किया, तो दोनों का प्रिपरेशन BCom और CA का, और UPSC आपने डिसाइड किया, UPSC प्रिपेयर किया, ऑल इंडिया रैंक आप सेकंड आई, तो दोनों प्रिपरेशन में कुछ डिफरेंस रहता है या स्ट्रैटेजी सेम ही रहती है? सर डिफरेंस रहता है थोड़ा सा. जैसे सिलेबस है तो CA में यू हैव अ डिफाइंड सेट ऑफ सिलेबस, आपको इंस्टीट्यूट से बुक्स भी मिलती है, सो यू नो दैट दिस इज़ व्हाट यू हैव टू स्टडी. UPSC में द थिंग इज के देयर इज़ अ सेइंग दैट एनीथिंग अंडर द सन कैन बी आस्क्ड. सो UPSC में द सिलेबस इज़ वेरी ब्रॉड एंड इट कीप्स ऑन चेंजिंग. देर आर अमेंडमेंट्स, देर आर अपडेट्स इन द CA सिलेबस एज वेल, बट वो एक सर्टन टाइम फ्रेम तक होते हैं. वी नो दैट हमें इस टाइम फ्रेम तक के अमेंडमेंट्स पढ़ने एंड देन वी कैन अपीयर फॉर द एग्जाम. बट UPSC में ऐसा नहीं है. UPSC में यू नेवर नो व्हाट माइट बी आस्क्ड, और उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है कि विद इन 1 ईयर का आपको पूछा जाएगा. तो उसमें यू नीड टू बी अपडेटेड एंड यू नीड टू बी अवेयर अबाउट व्हाट ऑल इज गोइंग ऑन एंड व्हाट ऑल इज चेंजिंग अराउंड यू. तो वो एक मेजर डिफरेंस मुझे फील किया था मैंने. फिर CA में सब्जेक्ट्स आर स्पेसिफिक बैकग्राउंड रिलेटेड होते हैं, सो यू हैव लिटिल कंफर्ट. वहाँ पे अकाउंट्स रिलेटेड है, ऑडिट है, सो वो 11th 12th में भी आपको थोड़ा सा उसका अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो चुका होता है, और BCom में भी आप वो चीज़ पढ़ते हैं. बट UPSC में काफ़ी सारे अनरिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं जो शायद मेरे बैकग्राउंड से रिलेटेड नहीं है, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज अ सब्जेक्ट और पॉलिटी एज अ सब्जेक्ट, जो हमने इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा होता है डेप्थ में. तो वो सब्जेक्ट्स कवर करने में बहुत डिफ़िकल्टी शुरू में मुझे हुई थी UPSC के सिलेबस में. बट हैविंग सेड दैट, डिफरेंसेस के साथ साथ सिमिलैरिटीज़ भी है, बिकॉज द सेम अमाउंट ऑफ डेडिकेशन और परसिवियरेंस दैट यू से जो CA में लगता था, वही चीज़ मैंने UPSC में भी कैरी फॉरवर्ड की, और वो चीज़ मुझे हेल्प करी. बिकॉज लॉन्ग आवर्स जो आपको बैठ के पढ़ाई करनी पड़ती है, वो मैं ऑलरेडी CA में करती थी, तो मुझे फिर वो शिफ्ट UPSC में इतना ज़्यादा अनकम्फर्टेबल नहीं लगा. सो वो डेडिकेशन, वो मेहनत, वो कैरी फॉरवर्ड हुई मेरे दोनों करियर्स में. What was your preparation strategy for UPSC Civil Services for prelims and mains? Was it integrated approach or separate approach? Sir, initially it is integrated only because a lot of subjects are common in mains as well and prelims as well. जैसे वही पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री या इकोनॉमी है, आप वो मेंस में भी पढ़ने वाले हैं और वही चीज़ आपको प्रीलिम्स में भी आने वाली है. तो शुरू में वो स्टैंडर्ड बुक्स होती है, वही आपको अच्छे से पढ़नी है, और साथ में मेंस के पर्सपेक्टिव से आपको कंसेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग बेटर करनी है, और प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से थोड़े फैक्ट्स और कमिटीज़ के नाम हैं, वो सारी चीज़ें आपको मगअप करनी है. तो इनिशियली इंटीग्रेटेड रहती है विथ मोर टिल टुवर्ड्स मेंस, बिकॉज शुरू के जो स्टार्टिंग के जो मंथ्स होते हैं उसमें आप अपना मेंस का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करते हो, कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे, आप आंसर्स लिख पाओगे, तो वो आपका एक फाउंडेशन सेट कर देगा मेंस के लिए. फिर जब प्रीलिम्स की एग्ज़ाम मई में आने वाली है, तो उसके 4-5 महीने पहले, जनवरी या फरवरी से आप होल हार्टेडली अपनी प्रिपरेशन को प्रीलिम्स पे शिफ्ट कर सकते हैं, बिकॉज तब तक आपका मेंस एक डिसेंट लेवल पे रेडी हो चुका होता है. एंड देन यू कैन स्टार्ट मगिंग अप दोज फैक्ट्स एंड व्हाट द करंट अफेयर्स थिंग. काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो जैसे स्पीशीज़ इन न्यूज़ हो गए या प्लेसेस इन न्यूज़ हो गए, तो वो हमें लास्ट क्लास में पढ़नी पड़ती है, बिकॉज वो हम अगर शुरू से पढ़ के रखेंगे तो हमें इतना रिटेंशन नहीं रहेगा उस चीज़ का. तो वो प्रीलिम्स स्पेसिफिक प्रिपरेशन आप 3-4 महीने पहले स्टार्ट कर सकते हैं. प्रीलिम्स में GS और CSAT, GS का प्रिपरेशन तो कैंडिडेट्स कर लेते हैं, लेकिन CSAT कभी कभी परेशान भी करता है, तो आपको क्या एक्सपीरियंस था CSAT का? सर, आई टोटली अग्री. CSAT इज़ वन ऑफ द मोस्ट नेग्लेक्टेड सब्जेक्ट्स आई वुड से, बिकॉज उसमें हमें ऐसा लगता है कि एक क्वालिफाइंग पेपर है तो हमें सर्टेन मार्क्स लाने हैं एंड देन विल बी थ्रू. बट नाउ इन रिसेंट टाइम्स इट हैज़ बिकम एन एलिमिनेटिंग पेपर सॉर्ट ऑफ, बिकॉज उसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो इतना ईजी नहीं रहा है जितना पहले देखने में आया था. तो अभी हम, जैसे मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में ये गलती करी CSAT में कि मैंने रीजनिंग पे और जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उस पर ज़्यादा फोकस किया. आई थॉट के वो मेरे लिए थोड़े कंफर्टेबल एरियाज़ हैं, तो उसमें मैं सारे क्वेश्चंस अच्छे से कर लूँ, देन आई विल बी थ्रू. क्वांट मेरा थोड़ा वीक था, तो मैंने उस पर इतना फोकस नहीं किया बिकॉज आई थॉट इट इज़ अ क्वालिफाइंग सब्जेक्ट. बट देन व्हेन आई अपीयर्ड उस साल में 2023 में RC बहुत टफ कर दिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन,
तो वो मेरे लिए बैकफायर कर गई स्ट्रैटेजी। फिर मुझे समझ आया कि मुझे सारे एरियाज़ पे क्वांट है, रीजनिंग, आरसी, तीनों पे इक्वल अमाउंट ऑफ फोकस करना पड़ेगा और तीनों को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो 2024 के ये वाले अटेम्प्ट पे मैंने क्वांट पे भी इनफ मेहनत करी, तो वो चीज़ थी फिर मुझे काम आई मेरे CSAT को क्लियर करने में। तो आप कोई एक स्पेसिफिक एरिया पे फोकस नहीं कर सकते और साथ में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को नेगलेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज हम कितने भी कंसेप्ट समझ ले क्वांट के हैं या रीजनिंग के हैं, जब तक आप उसको खुद अप्लाई ना करें और वही पिछले साल की UPSC की पूछे हुए क्वेश्चन है उस पर अप्लाई करके ना देखें, तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि आप वो कंसेप्ट को अप्लाई कर पा रहे हैं। तो ये थर्ड अटेम्प्ट में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे भी बहुत अच्छे से फोकस किया था। आपने मेंस में एसए में अच्छा टॉप किया है, एसए में आई थिंक यू आर टॉपर, ऑल इंडिया टॉपर। तो एसए के लिए कुछ स्पेशल स्ट्रेटेजी रही आपकी प्रिपरेशन की या प्रैक्टिस की? एसए के लिए द थिंग्स विच वर्क फॉर मी, उसमें पहली बात तो मैंने एसए में कोई लेक्चर्स नहीं देखे थे, तो आई थिंक दैट इज़ वन थिंग विच वर्क फॉर मी, बिकॉज हम जब लेक्चर्स देखते हैं तो उसमें देर इज़ अ मैकेनिकल अप्रोच विच इज़ बीइंग टॉट टू अस कि आप ये अप्रोच फॉलो करिए और इसी अप्रोच में आप अपना ऐसे लिख दीजिए, जो गलत नहीं है, बट वो आपको एक गाइड करना चाहिए, गाइड की तरह आपको उसको लेना चाहिए। बट एस्पिरेंट क्या गलती करता है कि उसी चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो करता है एग्जाम में, और ऐसे मेजॉरिटी ऑफ द एस्पिरेंट्स जो 14-15,000 बच्चे जो एग्जाम लिखते हैं मेंस की, उसमें मेजॉरिटी एस्पिरेंट्स डू दिस, वही मैकेनिकल अप्रोच में अपना ऐसे पूरा लिखते हैं और खुद की जो ऑथेंटिसिटी है या क्रिएटिविटी है वो कहीं ना कहीं लूज कर देते हैं उस अप्रोच में लिखने की वजह से। तो मेरे केस में ये हुआ कि मुझे अप्रोच पता थी, ये पेस्टल अप्रोच है या जो भी अप्रोचेस चलती है, आई हैड दैट आइडिया, बट मैंने उसमें अपने आप को बांधा नहीं, तो उससे मेरी जो क्रिएटिविटी है वो फ्रीली फ्लो हो सकी पेपर में। दैट इज़ वन थिंग। सेकेंड इज ऐसे में यू कैन जितने आप एग्जाम्पल्स कलेक्ट करो उतना अच्छा है, जितना आप जो कंसेप्ट है उसको अप्लाई कर सको, वही GS के कंसेप्ट को आप ऐसे में यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए आपको माइंडफुलनेस होनी चाहिए। जैसे मैं किया करती थी, एथिक्स में जो हम वैल्यूज़ वगैरह पढ़ते हैं, इंटीग्रिटी है, ऑनेस्टी है, वो सारी वैल्यूज़ हम पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स मैं अपने आसपास ढूंढने की कोशिश करती हूँ। क्या मेरी लाइफ में ऐसा कोई इवेंट हुआ हो जहाँ पे मैंने ये वैल्यूज शो की हो, या यूट्यूब पे काफ़ी सारे इंस्पिरेशनल वीडियोस देखा करती थी, जैसे गौर गोपाल दास जी के वीडियोस है जो मैं देखा करती थी, तो उससे आपको काफ़ी सारे ऐसे एनेक्डोट्स या इस तरह की क्रिएटिव चीज़ें मिल जाती है जो आप अपने एसेज में यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने क्रिएटिविटी दिखाई एग्जाम्पल्स कलेक्ट करने में, साथ ही साथ टॉपर्स कॉपीज़ को अच्छे से पढ़ा। अब अगेन उसमें भी एक गलती बच्चे ये करते हैं कि टॉपर्स कॉपीज़ को हम मेमोराइज करने लगते हैं कि उसी वे में हमें लिखना है, बट वो चीज़ नहीं करनी है। मैं उसमें क्या किया करती थी कि टॉपर्स जो लिख रहे हैं एसेज, उसमें किस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, किस तरह का फ्लो है उनका, किस तरह के एग्जाम्पल्स है, वो चीज़ को मैं समझने की कोशिश करती थी। और कुछ अगर एग्जाम्पल्स अच्छे लगते हैं तो वो एग्जाम्पल्स को अलग से मैं नोट डाउन कर लिया करती थी। तो मेरी एक एग्जाम्पल्स की अलग से मैं नोटबुक बना के, जो यूट्यूब वीडियोज़ है, टॉपर्स कॉपीज़ है, या जो एसे एनरिचमेंट बुकलेट जो मैंने रेफ़र की, वो सब का एक कंपाइलेशन करके अपने खुद के एग्जाम्पल्स की एक लिस्ट बनाया रखती हूँ। काफ़ी सारे माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ होती है जिसमें से भी हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, तो वो माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ भी मैं लिखा करती थी। इस तरह से मेरा एक सेट ऑफ पूरा एक रिपोजिटरी बन गया एग्जाम्पल्स का, जो फिर मैं अपने ऐसे में यूज़ कर पाई। तो वही चीज़ फिर मैंने बार बार रिवाइज करी। सो देयर वाज नो पर्टिकुलर सेट ऑफ मटेरियल, बट बहुत सारी चीज़ों का एक मिक्सचर था और खुद की क्रिएटिविटी। तो एथिक्स और ऐसे आपने यूनिक वे से प्रिपेयर किया है। अभी ऑप्शनल की बात करते हैं। ऑप्शनल कैसे चुनना चाहिए, आपने कैसे चुना था ऑप्शनल, कैसे डिसाइड किया था और उसका कैसे प्रिपेयर किया? मेरा जैसे फर्स्ट और सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा ऑप्शनल कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी था, फिर मैंने थर्ड अटेम्प्ट में मेरा ऑप्शनल चेंज किया था PSIR के लिए। उसका प्राइमरी 2 रीजन्स थे। पहला तो ये था कि मेरे लिए कॉमर्स मोनोटोनस बन गया था उस सेंस में, बिकॉज मैं 11th स्टैंडर्ड से कॉमर्स ही पढ़ते आ रही थी। फिर मैंने BCom में, CA में भी वही कॉमर्स पढ़ा, तो अगेन वही सिलेबस पढ़ने में मुझे थोड़ा सा वो मोनोटोनस फीलिंग आ रहा था, तो एक वो रीज़न था। सेकेंड वॉज PSR चूज़ करने का रीज़न ये था बिकॉज उसमें बहुत सारा ओवरलैप था विद GS सब्जेक्ट्स। तो ऑप्शनल चूज़ करने में आई फील फर्स्ट शुड बी योर बैकग्राउंड डेफिनेटली, बट अगेन यू शुड हैव दैट सेम लेवल ऑफ क्यूरियोसिटी एंड इंटरेस्ट विच यू हैड इन द बिगनिंग। अगर आप वही उससे इतने टाइम से, अगर आप सालों से पढ़ते आ रहे हो, अगर आपका इंटरेस्ट आप लूज कर चुके हैं, देन यू शुड रीथिंक। बट अगर वही इंटरेस्ट है तो फर्स्ट इज बैकग्राउंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड इज, अगर आप कोई दूसरा ऑप्शन लेना चाहते हैं अपार्ट फ्रॉम योर बैकग्राउंड, तो उस केस में पहला तो कि उसका ओवरलैप कितना है दूसरे GS सब्जेक्ट से। जैसे PSIR मेरे लिए वही रीज़न था कि उसका GS 2 में भी बहुत काम आता है, और उसका आप ऐसे में, बिकॉज फिलोसफिकल एसेज पूछे जाते हैं,
और एथिक्स में, इनमें आपका PSR का नॉलेज बहुत ज़्यादा काम आता है। तो ओवरलैप विद द GS सब्जेक्ट्स इज सेकेंड थिंग। एंड थर्ड इज द लेवल ऑफ क्यूरियोसिटी विच यू हैव, क्योंकि आप कोई भी नया ऑप्शन अगर चूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको पहले उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स देखने चाहिए, और उसके एक आध लेक्चर्स भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। तो आप अगर 2-3 ऑप्शंस में कंफ्यूज है तो आप वो लेक्चर्स देखिए पहले इनिशियली, तो आपको पता चलेगा कि किस में आपकी क्यूरियोसिटी ज़्यादा पीक हो रही है, किस में आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो ये क्यूरियोसिटी लेवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फोर्थ इज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ मटीरियल, बुक्स एंड एवरीथिंग, तो जो ऑप्शनल टू ऑप्शनल वेरी करता है। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान में रखें एंड फिर यू शुड डिसाइड योर ऑप्शनल, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इसमें बिकॉज इट कैरीज 500 मार्क्स। तो ऑप्शनल को आप उसका डिसीजन लाइटली नहीं ले सकते, इसको आपको अच्छे से सोच के एंड यू हैव टू डिसाइड, एंड वंस यू डिसाइड देन यू शुड नॉट रीथिंक इट और यू शुड नॉट हैव सेकंड थॉट्स अबाउट इट। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। आपने इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर किया? और सोशल मीडिया में बहुत सारे स्टूडेंट देखते हैं, इंटरव्यू के रील्स देखते हैं, तो रील्स और वीडियो में जो इंटरव्यूज़ दिखते हैं या मॉक हम देते हैं, तो रियल में जो धौलपुर हाउस में इंटरव्यू होता है वो सिमिलर होता है, कुछ शॉकिंग रहता है वहाँ पे? सिमिलर तो मैं नहीं कहूँगी, शॉकिंग डेफिनेटली होता है, बिकॉज आपका एक्चुअल इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस होता है वो वंस इन अ लाइफ टाइम एंड अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। बट जो मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं उसमें एक चीज़ होती है कि आपका वो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो जाता है। मतलब मॉक इंटरव्यूज़ में आप जो अननोन पैनल के सामने जाते हैं और वहाँ पे वो आपको क्वेश्चंस पूछते हैं और आप उसका आंसर करते हैं, तो उसमें आपकी एक तो थिंकिंग एबिलिटी डेवलप होने लगती है ऑन स्पॉट आंसर्स देने की, और साथ में आपका कॉन्फिडेंस आने लगता है। बिकॉज अगर आप उन लोगों के सामने आप कॉन्फिडेंटली आंसर कर पाएंगे तो आप UPSC के पैनल के सामने भी आंसर कर पाएंगे। तो मॉक इंटरव्यूज़ उस वे में हेल्प करते हैं। बट मेरा एक्चुअल UPSC का जो इंटरव्यू था उसमें डिस्पाइट गिविंग मैनी मॉक्स, नर्वसनेस का लेवल तो हाई रहता ही है, बिकॉज आफ्टर ऑल इट इज़ योर UPSC इंटरव्यू। तो वही नर्वसनेस का लेवल मैंने भी फील किया जब मैं वहाँ वेट कर रही थी और बाहर, तो वो नर्वसनेस आई कुड फील इट, जो मैं अपने मॉक इंटरव्यूज़ में इतना फील नहीं करती थी। फिर जब मैं अंदर गई बैठी, तो जब मैं आंसर कर रही थी तभी भी मैंने 2-3 बार मेरा स्लिप ऑफ टंग भी हुआ। वो सारी चीज़ें मैंने फेस की और तब मुझे खुद रियलाइज़ हो रहा था कि आई एम एक्चुअली वेरी नर्वस, जो अगेन मॉक इंटरव्यूज़ में नहीं थी। बिकॉज मॉक इंटरव्यूज़ में क्या होता था कि एक बार मैं अंदर चली जाऊँ और एक बार इंटरव्यू स्टार्ट हो जाए, देन आई वुड बी कॉन्फिडेंट इन आंसरिंग। बट ये चीज़ एक्चुअल इंटरव्यू में नहीं थी। और द काइंड ऑफ क्वेश्चंस विच वर आस्क्ड, दे वर ऑल्सो मिक्स ऑफ माई DAF, द डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म विच वी आर सपोज टू फिल, एंड द करंट इवेंट्स। तो वो दोनों का मिक्सचर था। एंड साथ में देयर वर 1 or 2 आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस एज वेल, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और उसका थोड़ा बहुत आपको जो टेस्ट है वो मॉक इंटरव्यूज़ में मिल जाता है, बिकॉज उसमें भी दे ट्राई टू ग्रिल यू। तो वो थोड़े आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस होते हैं, बट द मेन थिंग इज़ आप जितना आप खुद को काम एंड कंपोज रख पाओ एक्चुअल इंटरव्यू में, और जितना ऑनेस्टली आप आंसर कर पाओ, वही चीज़ आपको आपके इंटरव्यू से ईजीली सेल थ्रू करवाने में हेल्प करेगी। सो इट वॉज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, टोटली डिफरेंट। UPSC प्रिपरेशन में कौन सा सब्जेक्ट आपका सबसे ज़्यादा फेवरेट था और उसका कुछ आपको यूज़ हुआ रिजल्ट्स में? मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट मतलब एक नहीं है, 2-3 थे। ऐसे ऑफ कोर्स आई लव राइटिंग, बिकॉज उसमें ऐसा है कि आपको कुछ मगअप नहीं करना होता है, उसमें आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं। और मैं लंबा लंबा लिखने में एक्सपर्ट हूँ पहले से, तो वो ऐसे डेफिनेटली मुझे मज़ा आता था लिखने में। फिर पॉलिटी इज़ अनदर सब्जेक्ट जो मुझे बहुत पसंद था शुरू से ही, तो उसमें मैंने GS2 में भी अच्छा स्कोर किया है। एंड एथिक्स इज़ अनदर सब्जेक्ट विच आई यूज़ टू लव, बिकॉज उसमें अगेन यू कैन शो योर क्रिएटिविटी। वो जो वैल्यूज़ है, जो उसमें आप कितने सारे एग्जाम्पल्स GS से या कहीं से भी उठा के आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो एथिक्स इज़ अनदर सब्जेक्ट विच आई लव्ड। UPSC के दरम्यान डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट या टफेस्ट टॉपिक ऐसा कोई आपको फील हुआ? डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स में जो मेरे बैकग्राउंड से रिलेटेड नहीं थे, जैसे हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री मुझे शुरू में बिल्कुल पसंद नहीं था। उसमें स्पेसिफिकली एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री करने में तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी, तो वो सब्जेक्ट्स में मुझे शुरू में डिफ़िकल्टी हुई। और एनवायरनमेंट है, साइंस एंड टेक है, तो उसमें भी बिकॉज यू डोंट नो अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो उसमें भी इनिशियली मुझे थोड़ा डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ा। बट जैसे जैसे उसके कंसेप्ट्स ब्रेक थ्रू करके उसको समझती गई, चीज़ें आने लगी, तो धीरे धीरे फिर वो सब्जेक्ट थोड़े मैनेजेबल हो गए, और फिर लास्ट में आते आते वो भी वन ऑफ द मोस्ट लाइकेबल सब्जेक्ट्स में बन गए। इनिशियली वो सब्जेक्ट्स में डिफ़िकल्टी हुई थी। करंट अफेयर के बारे में तो लोकल टू ग्लोबल हमें सब कुछ जानना रहता है यदि आपको एडमिनिस्ट्रेशन में आना है, तो करंट अफेयर का प्रिपरेशन आपने कैसे किया? करंट अफेयर्स में मैंने पहले तो हम जो बेसिक मैगजीन्स पढ़ते हैं वो मैंने भी पढ़ी, साथ में मैं एनरिचमेंट कोर्सेज़ का भी पार्ट थी, तो वो भी मैंने किए थे। उसके साथ साथ एक चीज़ जो मैंने डिफरेंट करी वो था न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट डालना, जो शुरू में मेरे अंदर बिल्कुल नहीं थी, बट बाद में ज़बरदस्ती वो चीज़ डालनी पड़ी अपने अंदर।
तो न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट है। सेकंड इज़ उसमें मैंने थोड़ा थर्ड अटेम्प्ट में पर्टिकुलरली स्मार्ट वर्क किया, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट से हम मैगजीन्स पढ़ के जाते हैं, जो भी हमारा रिसोर्सेज हम सब करके जाते हैं, बट एंड में वो चीज़ रिवाइज करनी बहुत डिफिकल्ट हो जाती है बिकॉज बहुत सारा मटेरियल होता है। तो थर्ड अटेम्प्ट में मैंने करंट अफेयर्स के टेस्ट सीरीज़ लिए मंथली। तो उसमें आप एक मंथ के आप 100 क्वेश्चंस अगर सॉल्व करेंगे तो आपको एक कवरेज ज़्यादा मिलेगा उसका। तो मैंने करंट अफेयर्स के टेस्ट सीरीज़ लगाने स्टार्ट किए थर्ड अटेम्प्ट में। इस तरह से स्मार्टली प्रिपेयर किया ताकि मेरा कवरेज बढ़ जाए, और क्वेश्चंस में जब आपकी गलतियाँ होती हैं ना तो आपको ज़्यादा याद रहता है एज़ कम्पेयर टू कि जब आप खुद पूरा मटीरियल पढ़ने जाते हो। तो वो गलतियों से फिर मेरा जो रिटेंशन था उस चीज़ में थोड़ा बढ़ गया। और साथ में बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ होते हैं जो अवेलेबल होते हैं, तो उसमें भी थोड़ा जो मेरे लिए टाइम एंड कॉस्ट बेनिफिट लगा के कम टाइम में ज़्यादा कवर कर दे वैसी वीडियोस देखे। प्लेसेस इन न्यूज़ है तो उसके लिए भी आप यूट्यूब वीडियोस देख सकते हो, तो ऑडियो विजुअल मोड से भी रिटेंशन ज़्यादा रहता है। तो ये सारी चीज़ों का मैंने अमालगमेशन करके करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन अपनी स्ट्रॉन्ग बनाई थोड़ी। आजकल डिजिटल टेक्नोलॉजी का ईरा चल रहा है, तो डिजिटल टेक्नोलॉजी में सब कुछ जो हमारे फिंगर टिप्स पे होती है, इजीली अवेलेबल एक्सेसिबल होती है। तो AI है, चैट GPT है, गूगल है, उसका कैसे आपने यूज़ किया या कर सकते हैं उसका यूज़ प्रिपरेशन में? मैंने चैट GPT का यूज़ किया था स्पेसिफिकली अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन में। मतलब मेंस में तो तब इतना ज़्यादा मैंने नहीं उसको यूज़ किया था, बट इंटरव्यू के टाइम पे आते आते मैंने जो मेरा डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म था तो उसमें जो भी मेरे स्पेसिफिक एरियाज थे, जैसे गुजरात है या मेरा बैकग्राउंड है, उस तरह के एरियाज से रिलेटेड मैंने चैट GPT में प्रॉम्प्ट्स डालती थी मैं कि प्लीज़ प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच कैन बी आस्क्ड इन एन UPSC इंटरव्यू रिगार्डिंग सो एंड सो टॉपिक। तो उसमें वो पूरे लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस आ जाते थे। फिर आई यूज्ड टू आस्क चैट GPT ओनली कि आप इसके मेरे को मॉडल मतलब आंसर्स बना के दो। तो उससे मुझे आइडिया आता था कि अच्छा ये सारे एरियाज़ है जो इस पर्टिकुलर टॉपिक में से पूछे जा सकते हैं और इसके लिए मुझे प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो वो क्वेश्चंस मेरा बेस बन जाते थे। फिर वो आंसर्स पढ़ के और खुद का जो एक्सपीरियंस है उसको ऐड करके फिर आई कुड मेक माई ओन आंसर्स। तो वो क्वेश्चन से मुझे काफ़ी सारा मेरा कवरेज ब्रॉड हो गया था। तो ये चीज़ मैंने इंटरव्यू के टाइम पे बहुत की थी बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन एरियाज़ होते हैं। आप अपना डैफ जो भरते हो तो आपके पेरेंट्स का बैकग्राउंड हो गया, आपका खुद का एजुकेशनल बैकग्राउंड है या हॉबीज़ है, इंटरेस्ट है, सारी चीज़ें आपको अपने डैफ में भरनी होती है। तो वो एक एक एरिया उठा के उसके मल्टीफेसेटेड क्वेश्चंस मैं चैट GPT से जनरेट करने की कोशिश करती थी। आपके हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट क्या रहे और क्या उसका यूज़ हुआ आपको UPSC प्रिपरेशन में? मेरी हॉबी, मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद है, तो वही चीज़ मैंने एक्रेलिक पेंटिंग है स्पेसिफिकली, वही मैंने अपने UPSC इंटरव्यू में भी कही थी। तो वैसे ही यूज़, जैसे मेरे UPSC इंटरव्यू में तो कोई क्वेश्चंस नहीं आए थे मुझे हॉबी से रिलेटेड, बट वो हॉबी मेरे लिए UPSC की जर्नी में बहुत काम लगी थी। बिकॉज जब ऐसा होता था कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड हो गया है, तब आई यूज़ टू टेक माई कैनवस और ड्राइंग बुक और उसमें कुछ स्केच बना लिया या पेंट कर लिया, तो वो एक प्रेशर रिलीव करने जैसा काम करता था। तो एक तरह से मुझे UPSC की जर्नी में शांत रखने में मेरी हॉबी का अच्छा रोल रहा था। आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा और फैमिली ने कैसे सपोर्ट किया आपको ड्यूरिंग दिस एंटायर जर्नी? मेरे फादर तो प्राइवेट सर्विस में हैं, जॉब करते हैं, और मेरी मदर शी वॉज अ होम मेकर बट शी डाइड इन 2014। और मेरा छोटा भाई है, वो अभी स्कूल में है, और मैं ये CA एंड सिविल सर्विसेज। एक्चुअली मैं मेरी फैमिली में फ़र्स्ट हूँ जो सिविल सर्विसेज की लाइन में आई हूँ। उसके पहले जुडिशरी से मेरे फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, बट फैमिली सपोर्ट की बात करूं तो वो मेरे केस में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। आई थिंक मैं 80-90% क्रेडिट उसी चीज़ को देना चाहूँगी जिसकी वजह से मैं थर्ड अटैम्प्ट तक या लास्ट तक मेरी जर्नी में टिक पाई। बिकॉज एक पॉइंट पे मैंने सेकेंड अटैम्प्ट के बाद ऐसा भी सोच लिया था, जब मेरा थर्ड अटैम्प्ट का प्रीलिम्स नहीं आया था, कि मे बी आई शुड टेक अ ब्रेक फॉर दिस ईयर एंड आई शुड गो फॉर टुवर्ड्स CA, क्योंकि रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे। आप पहला अटैम्प्ट फेल करो, दूसरा अटैम्प्ट फेल करो, और उसमें भी सिर्फ प्रीलिम्स ही आप फेल कर रहे हो, पहला ही लेवल आप पार नहीं कर पा रहे। तो थर्ड अटैम्प्ट के पहले मेरे दिमाग में भी थॉट्स आ रहे थे कि शायद मुझे ड्रॉप ले लेना चाहिए, बट उस पॉइंट पे मेरे फैमिली का जो सपोर्ट था, कि उनका जो फेथ था मेरे अंदर, जब आई कुड नॉट बिलीव इन माई सेल्फ, वो चीज़ ने मुझे आगे पुश किया कि ये अटैम्प्ट में भी ट्राई करना है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं वापस। तो वो प्रेशर नहीं रहा मेरे ऊपर कि नहीं मुझे ये चीज़ करनी ही पड़ेगी। तो वो फैमिली सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा मेजर थिंग था, जिसकी वजह से मैं UPSC की जर्नी में एंड तक टिक पाई। जब मैं अहमदाबाद से प्रिपेयर करती थी, तो जब मुझे ऐसा लगता था कि मन नहीं लग रहा है या बहुत डिमोटिवेटेड फील कर रही हूँ, तो पापा कभी कभी सरप्राइज़ देने आ जाया करते थे भाई को लेके साथ में अहमदाबाद, या कुछ मैं ऑर्डर करके खा लेती थी या इस तरह से।
तो बहुत ही लाइट वे में और बहुत ही बैलेंस्ड वे में मैंने प्रिपरेशन करी, और उसमें मेजर पार्ट था फैमिली का, जिसकी वजह से मैं उतना प्रेशर्ड फील नहीं करती। तो फैमिली सपोर्ट वाज अ बिग थिंग इन माय जर्नी। हमने सुना है कि आपके माताजी का भी एक ड्रीम रहा था कि सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करना चाहती थी, तो अभी आपको क्या लगता है कि आप खुद उनका ड्रीम भी जी रही है और खुद का भी ड्रीम आपने अचीव किया है? जी बिल्कुल, मतलब उन्होंने मुझे कभी ऐसा नहीं बोला कि बेटा तुझे ये चीज़ करनी ही पड़ेगी। वो डेफिनेटली मेरे लिए बड़े सपने देखती थी, बट उनका मेन ये था कि मुझे इंडिपेंडेंट बनना है, बड़े होके किसी पे डिपेंड नहीं होना है। तो वो उनका सबसे बड़ा एक मोटिव था। तो मम्मी ने हमेशा मुझे यही कहा कि आगे कुछ भी करना है तो खुद के पैरों पे खड़े होके करना है। तो उनके वो जो वैल्यूज़ थे और जो कभी ना गिव अप करने की जो एक वैल्यू है, वो मेरे पापा और मम्मी दोनों से ही मुझे वो चीज़ मिली, और वही चीज़ मे भी मुझे सीए में भी काम है और वो मुझे सिविल सर्विसेज में भी काम है। कि मैंने कभी जब गिव अप करने का थॉट भी आया, तभी भी खुद के अंदर वो आग लेके आना वापस, और फैमिली को साथ में लेके चलना और बड़े सपने देखना। तो वो सब चीज़ों का जो रूट है वो पेरेंट्स के वैल्यूज से ही आया है। आपको क्या लगता है कि जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं, जो आपको रोल मॉडल देख रहे हैं या जो यूपीएससी से सिविल सर्विसेज में करियर करना चाहते हैं, उनके लिए राइट टाइम क्या हो सकता है डिसीजन लेने का कि सिविल सर्विसेज में करियर करना है? प्रिपरेशन उन्होंने कैसे करना चाहिए? सपना तो आप कभी भी देख सकते हो, चाहे वो बचपन में हो या चाहे आप कोई भी स्टेज ऑफ लाइफ पे हो। कोई भी ऐसा एक एक्सपीरियंस हो सकता है जो आपको ट्रिगर कर सकता है। तो सपना तो कभी भी देख सकते हो, बट उसकी एक्चुअल प्रिपरेशन मुझे लगता है कि जब आप ग्रेजुएशन करते हो, तो ग्रेजुएशन में जब आप सेकेंड या थर्ड ईयर में हो, तब मुझे लगता है कि आपको सीरियस यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। बिकॉज यूपीएससी का सिलेबस चेंज होता रहता है, तो अगर आप 4-5 साल पहले से अगर प्रिपरेशन स्टार्ट भी करोगे, बट उसका इतना बेनिफिट नहीं होगा जितना आप यूपीएससी अटेम्प्ट देने वाले उसके 2 साल पहले जो प्रिपरेशन करोगे। तो आई थिंक कि आप जब सीरियस अटेम्प्ट देने का सोच रहे हो, उसके 2 साल पहले से आपको अपनी सीरियस तैयारी शुरू करनी चाहिए। उसके पहले अगर आपको करना है तो आप अपने आप को अपडेटेड रखने का ट्राई कर सकते हो। न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट स्टार्ट कर सकते हो, जो आपको आगे काम आएगी। एक लर्नड स्टूडेंट बनने की कोशिश कर सकते हो, बिकॉज ग्रेजुएशन करना वो भी ज़रूरी है। ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट्स का नॉलेज है वो आपको यूपीएससी इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। मे बी वही ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट आप ऑप्शनल में भी चूज़ कर सकते हो। तो ग्रेजुएशन भी इम्पॉर्टेंट है, बट उसके एंड में आते आते मिड ग्रेजुएशन की साइकिल जब हो जाए, उसके बाद आप अपनी यूपीएससी पे अपनी एनर्जी सीरियसली डालने का स्टार्ट कर सकते हो। दिस इज़ व्हाट आई फील। आप बिगिनर्स के लिए एनसीईआरटी का प्रिपरेशन या फाउंडेशन वो कैसे प्रिपेयर करें, उसके लिए क्या एडवाइस देना चाहिए? एनसीईआरटीज़ एक बेस की तरह काम करते हैं। तो उसमें जब हम यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम अपना यूपीएससी का हमें सिलेबस देखना चाहिए कि क्या चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है। तो उससे हमें एक ब्रॉड आइडिया आएगा। उसके बाद वो स्टैंडर्ड बुक्स जो है, लक्ष्मीकांत है या स्पेक्ट्रम है, वो सब पढ़ने से पहले आपको एक बेस डेवलप करने के लिए एनसीईआरटीज़ हेल्प करती है। तो एनसीईआरटी से आपको समझ में आती है अच्छा ये चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है, और वो चीज़ हम पढ़ चुके होते हैं ऑलरेडी स्कूल में। तो वो आप इजीली कर सकते हो कवर, और उससे आपका माइंड रिफ्रेश हो जाएगा कि ये सारी चीज़ें मुझे अब आगे जाके इसको एडवांस लेवल पे पढ़नी है। तो एनसीईआरटीज़ आप एक बेस की तरह स्टार्ट कर सकते हो पढ़ना। फिर आपको अपनी स्टैंडर्ड बुक्स के ऊपर शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी में काफ़ी सारे क्वेश्चंस एज इट इज़ एनसीईआरटी से भी पूछे जाते हैं। जैसे ज्योग्राफी है या एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री या कल्चर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, तो वो एनसीईआरटी से एज इट इज़ यूपीएससी कंसेप्ट उठा के और प्रीलिम्स में पूछता है। तो दे आर इम्पॉर्टेंट एंड दे हेल्प इन क्रिएटिंग अ बेस। आपका जो एंटायर जर्नी रहा यूपीएससी प्रिपरेशन का, और जो आपका ग्रैंड अचीवमेंट रहा ऑल इंडिया रैंक सेकंड, उससे आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो बिगिनर से जो यूपीएससी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं एज अ ड्रीम करियर? मैं उनको एक ही एडवाइस देना चाहूँगी कि हर किसी के लाइफ एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं। मैंने अपनी लाइफ जर्नी में जो चैलेंजेस फेस किए, वो ज़रूरी नहीं है आप सेम चैलेंजेस फेस करो, शायद उससे भी ज़्यादा एडवर्स कंडीशंस भी हो सकती है एस्पिरेंट्स की। बट उन सब फेजेस में वन थिंग विच हेल्प्स इज़ दैट फेथ दैट यू हैव इन योरसेल्फ। वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। आपको नो मैटर जितना भी एक्सटर्नल मोटिवेशन आपको मिल जाए, वो आपको एक लिमिट तक काम आएगा, बट जब तक आपके अंदर वो इंटरनल ड्राइव नहीं होगी कि येस मुझे सिविल सर्विसेज क्रैक करनी है, तब तक आप उसके अंदर अपने 100% एफर्ट्स नहीं डालोगे। और जब आपके अंदर वो फायर होगा, तो आप कोई भी एडवर्सिटी है, कोई भी चैलेंज है, उसको ओवरकम करने के लिए अपनी जी जान डाल दोगे। तो वो फेथ होना बहुत ज़रूरी है आपकी प्रिपरेशन में। और सेकेंड थिंग इज़ ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मुझे लगता है कि आजकल बहुत सारे एस्पिरेंट्स में लैक करती है, बिकॉज हम लोग क्वान्टिटेटिव आवर्स तो डाल देते हैं, हम किताब खोल के बैठ जाते हैं 2 घंटे, बट हमें पता होता है कि हम उसमें कितना टाइम फोकस होके पढ़ रहे हैं।
अगर हम 2 घंटे बैठे हैं और हमारा दिमाग कहीं और है, तो दैट मीन्स वी आर बिट्रेइंग आवरसेल्व्स ऑल्सो एंड वी आर बिट्रेइंग आवर पेरेंट्स ऑल्सो, बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अस. तो जब आप जितनी पढ़ाई कर रहे हो, जब भी आप बैठे हो अपने स्टडी करने, तब यू शुड हैव दैट ऑनेस्टी विथ योर सेल्फ कि मैं जितना भी अपना टाइम या एफर्ट डाल रहा हूँ वो मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, और वही आप उसी बेस्ट एफर्ट को आपको डेली थोड़ा थोड़ा करके बेटर बनाते जाना है. तो वो ऑनेस्टी होनी बहुत ज़रूरी है अपनी प्रिपरेशन में. दीज आर द 2 थिंग्स. बाकी टेक्निकलिटीज़ है, सिलेबस है, रिसोर्सेज है, वो सब सेकेंडरी चीज़ है, बट ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड द थर्ड थिंग इज़ आप अपने फैमिली को हमेशा साथ में लेके रखिए, बिकॉज फैमिली वाला जो सपोर्ट है वो अनकंडीशनल होता है और वो सबसे बड़ा सपोर्ट होता है. आपके फ्रेंड्स, आपके और बाकी जो कलीग्स है, बाकी सब, वो उनका सपोर्ट नेसेसरी है, बट फैमिली से बड़ा कोई सपोर्ट नहीं होता. तो आप उनको हमेशा कॉन्फिडेंस में लेके चलिए, उनको हर स्टेप पे अपने साथ लेके चलिए. ये चीज़ें आपको आपकी जर्नी में जब जब आप डाउन फील करेंगे ना, तब तब अपलिफ्ट करने का काम करेंगे. आपका एंटायर प्रिपरेशन और आपकी सक्सेस स्टोरी, ये तो सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है. तो मुझे लगता है कि हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं वो उससे मोटिवेट होंगे और उनका ड्रीम करियर अचीव करेंगे. थैंक यू. थैंक यू सर.